Yes. Hello children, how are you all? So children, today we are going to start a new lesson from a new textbook, that is term 2 for class 5th. So all the 5th class students, take out your term 2 reader, because as our term 1 syllabus is completed, how many lessons were there in the science? That all lessons are completed, right? Only question answer, yeah, all lessons are completed. So now today let us start with a new lesson of term 2. So everyone take out your reader, page number 90. So our very first lesson is deficiency diseases. So what do you mean by deficiency? Deficiency means कमी, lack. तो जिसके वजह से हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी है, उसके वजह से हमें क्या हो सकता है? डिजीजेस हो सकते हैं. सो डेफिशिएंसी डिजीजेस में खाने में कमी के कारण जो हमें डिजीज हो सकते हैं. So this lesson is all about the diseases which will occur if you not eat good food. So listen to the lesson carefully, because I know you children have a habit of not eating a proper diet. Whatever your mother gives you in the tiffin, ये नहीं खाना है, आज ये बना है, आज वो बना है. So now you see कि अगर आप वो जो आपकी मदर आपको प्रिपेयर करके देती है, that all are healthy food. And if you not eat those food, so see what are the diseases which will occur. Listen properly. Now yes, take out your reader, page number 90. So each food habit has one or two nutrients. कोई भी रहने दो, चाहे चावल रहने दो, चाहे पानी भी रहने दो, या दूध रहने दो, या कोई भी दाल रहने दो, कोई भी सब्जी रहने दो, हर एक चीज में एक काइंड का न्यूट्रिएंट होता है. सो आवर बॉडी हमें एक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स and many other nutrients, or with the vitamins and nutrients along with the water and fiber. So if you have all this thing, these are called as what? Balanced diet. तो मतलब protein, carbohydrate, fats, vitamins, all these things are regarded as what? Balanced diet. So every day we should have balanced diet to remain healthy and strong. So if the one does not have a balanced diet, अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा पर्सन है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा पर्सन है जो बैलेंस डाइट नहीं खाता हो, so या उसके खाने में there is one or more than one nutrients की कमी हो, so he will get diseases. So diseases are caused if one or more nutrients are not present in our daily diet in the required amount. So now thus the diseases which are caused, जो diseases है जो खाने की कमी के वजह से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं. एज आई टोल्ड यू, डेफिशिएंसी मीन्स खाने की कमी, और डिजीज मीन्स खाने की कमी के कारण बीमारियां. ओके, सो अगर किसी इंसान में एक या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उनके बैलेंस डाइट में, तो इमीडिएटली उसको कोई भी डिजीज आ सकती है, कोई भी. ओके, सो एवरी डे वॉट एवर योर मदर कुक्स, नॉट योर आउटसाइड फूड. ये नहीं कि हम बाहर से खाना खा लेंगे तो हमें बैलेंस डाइट है. नो, outside food is not healthy, so whatever your mother prepares at home, that is a healthy food, and they will help us to cure from diseases, और वो disease आपको होने ही नहीं देगा. Yes, I see in the school many of the students, they have a habit कि मम्मी they'll say us today stomach ache, आज stomach दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज पेट में दर्द है. Even the students of first class also, they have a complaint like this. Why? Because they not eat healthy food. वो खाना खाते ही नहीं है. पहली बात तो अगर खाना खाते भी है तो शायद बाहर का इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब खाना खाएंगे. नो, what every day you should have a balanced diet, then only your stomach will be healthy and then your body will be healthy. So this diseases are non communicable, क्योंकि जो खाने की कमी के वजह से हमें कोई भी डिजीज होता है तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता, वो आपके अंदर ही रहता है. Let us see different types of diseases. अब आप देखो कितने सारे diseases के names आते हैं यहाँ पे. So causes of deficiency diseases, किसके कारण deficiency disease होते हैं? सबसे पहला, एक से ज़्यादा nutrients, जो आप खाना खाए, रोज़ खाना खाते हैं लेकिन वो खाना हेल्दी नहीं है, उसके अंदर वो प्रोटीन्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसके वजह से आपको क्या हो सकता है? आपको डिजीज अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? किसी को बार बार उल्टियाँ होना, ओके, या बार बार इन्फेक्शन होना.
या देयर इज लाइक इंटेस्टाइन्स में आपके बहुत सारे वॉर्म्स रहना, पेट में भी कीड़े होते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा कीड़े आपके पेट में हो और लाइक मच लॉस ऑफ लिक्विड जूसेस, उल्टी आ गई, तो आपकी बॉडी के अंदर से लिक्विड अमाउंट ज़्यादा निकल गया, इसकी वजह से भी आपको डिजीजेस हो सकते हैं। सेकेंड इज वन रॉन्ग फूड हैबिट, कुकिंग की हैबिट। ये आपकी मदर के लिए है। अगर वो चावल को उबालते हैं तो सब जो चावल का पानी है उसे फेंक देते हैं, या ज़्यादा हीट करके खाना को पकाना। सो आपकी मदर को भी बोलो कि चावल का पानी या ज़्यादा सब्जियों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, या ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना, क्योंकि ओवर कुकिंग या चावल का पानी फेंकने से क्या होता है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन्स होते हैं वो गिर जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। उसके बाद आप क्या खाएंगे, आप खोखला खाना खा रहे हैं। सो ये आपकी मदर्स के लिए कि खाना बनाते समय यू शुड वॉश इट एंड देन डोंट ओवर कुक एंड डोंट थ्रो द वाटर फ्रॉम द राइस। ओके, लेट अस सी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो आपको क्या बीमारी हो सकती है। नॉट ओनली यू, अगर मैं भी खाना बराबर से नहीं खाऊंगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएंगी, राइट। सो हमें क्या बीमारी हो सकती है, लेट अस सी। सो सबसे पहला प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बीमारी कैसा होती है। सो दिस अकर्स यूजुअली एट द एज ऑफ 6 months to 3 years, मतलब ये समझ लो यूकेजी के स्टूडेंट्स तक के लिए। तो क्या होता है इस चीज में डिजीज इसलिए आते हैं क्योंकि मम्मी जो है उन्हें बराबर मिल्क नहीं दे सकती है, एंड उन्हें बराबर खाना अगर मम्मी नहीं देती है, क्योंकि 3 साल के बच्चों को तो नहीं पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन्हें तो उनकी मदर ही खिलाती है। तो ये मम्मी की वजह से, अगर उनकी मम्मी उन्हें बराबर खाना नहीं खिलाती है, कौन से ईयर के लिए, फ्रॉम द 6 months to 3 years। सो क्या हो सकता है इसमें, चिल्ड्रन को खेलने में मज़ा नहीं आता, या वो लोग बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, हमेशा टायर्ड रहते हैं और सो जाते हैं जल्दी, और पतले से बच्चे होते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन नहीं रहते। सेम एज में अगर 3 साल के बच्चे को देख लो तो उनका बॉडी वेट जितना होना चाहिए उनका बॉडी वेट इतना नहीं रहता। सो चाइल्ड की स्किन लूज होती है, आइस में प्रॉब्लम होती है, या बेली हैंड्स में भी उनके प्रॉपर हैंड्स नहीं होते, फीट्स भी नहीं, और स्किन डेक गेट्स डार्क, काले होते जाना, एंड स्टार्ट पीलिंग ऑफ। सो ये सिम्टम्स है अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो। तो ये यूजुअली कौन से एज के बच्चों में है, फ्रॉम 6 months to 3 years। तो इसे कैसा ठीक किया जाता है, इसे ठीक करने के लिए मम्मी को मिल्क पिलाना चाहिए, मम्मी बच्चों को, ठीक है, उन्हें मम्मी का काम है कि बच्चों को दूध पिलाना, उनको फ्रूट्स खिलाना, उनको बॉइल्ड फूड लाइक दलिया और मैश्ड वेजिटेबल्स खिलाना, क्योंकि वो बड़े बड़े सब्जियां तो नहीं खा सकते हैं, तो मैश्ड वेजिटेबल्स उनको खिलाना, एंड दे शुड फ्रॉम द एज ऑफ 4 months। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे फूड देना चाहिए मम्मी को। मम्मी का काम है कि वो बच्चों में ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी नहीं होना। अब देखेंगे विटामिन की डेफिशिएंसी। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में कैसे आती है, और अगर आ गई तो उससे क्या होता है। सो विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी में कमी हो, आप क्या होता है, आप रात में अंधे हो जाते हैं। ओके, सो द मेन साइन ऑफ दिस इज अ डिफिकल्टी इन सीइंग इन द डिम लाइट। अगर डिम लाइट है, छोटी सी लाइट है, उसमें आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। डल एंड ड्राई आइज, आपके आइज डल होते हैं, मतलब दुखने शुरू हो जाते हैं, या आपको ज़्यादा काम करना नहीं पसंद आता है। Next is what, triangular patches. You can have a patches over here, and there is a dry and scaly skin. You can see this is the lack of deficiency. देख सकते हैं कितना white है, खून की कमी यहाँ पे, और white patches है, so many things, right? अगर आपको इसे ठीक करना है तो आपको क्या खाना चाहिए, green leafy vegetables, carrot, papaya, milk, and milk products should be taken to prevent what, to prevent night blindness. You can see over here, these are the things you should eat to prevent what, to prevent vitamin A deficiency. Next is what, vitamin B deficiency. अगर vitamin B deficiency है तो आपको क्या हो सकता है, आपको माउथ के कॉर्नर्स में क्रैक हो सकते हैं, आपकी टंग रेड हो जाएगी, देयर इज अ नम्बनेस, मतलब सुन, बॉडी में सुन हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्स। अगर कोई आपको फिंगर को टच भी करे तो यू विल नॉट, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई आपके फिंगर को टच कर रहा है, जैसे कि समझ लो किसी को पॉलिश का अटैक हो गया, राइट, दे विल नॉट मूव। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से ठीक कर सकते हैं, स्प्रोटेड, ठीक है, स्प्रोटेड पल्सेस खा के ठीक कर सकते हैं, होल ग्रेन, ग्राम एंड मिल्क। स्प्रोटेड मतलब ऐसे जो ऊपर से ऐसे दाने दाने निकलते हैं ना, चिल्ड्रन यू शुड ईट दिस एवरी डे। ओके,
So these are the food items which protects us from vitamin B deficiency. अब देखते हैं कि विटामिन सी डेफिशिएंसी किससे होता है. सो विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या होता है, यू विल हैव रेड स्पॉट्स ऑन योर स्किन, स्वोलन स्किन फूल जाती है, टीथ में से खून निकलने लग जाता है एंड हमेशा टीथ टूटते रहते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, विटामिन सी डेफिशिएंसी. तो ये टीथ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है इफ यू हैव व्हाट, विटामिन सी डेफिशिएंसी. यू कैन सी द टीथ ओवर हियर. सो अगर इफ एनीवन इज हैविंग अ टीथ लाइक दिस, इट मींस he or she has a problem of vitamin C. So what you should eat? You should eat food like fruits like amla, you should eat lemon, you should eat orange, you should eat guava and sprouted grapes, etc. So many things you should eat like this. Next is what, vitamin D deficiency. So if a person is having vitamin D deficiency, तो उसको क्या होता है, उसके बोन्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. बोन्स सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बोन्स सॉफ्ट होते हैं तो यू कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली. तो उसके बोन्स में कमी होनी शुरू हो जाती है. सो यू कैन सी, इसके बोन्स में कमी है तो उसके पैर देखो कैसे टेढ़े. कैन यू सी? दीज आर द प्रॉब्लम्स कैन अकर नाउ आल्सो, चिल्ड्रन ऑफ 5th क्लास. ओके, सो यू शुड ईट हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड. सो you will have a problem like this, like bowed legs, bending ribs. जो किसी को झुकने की, जो झुक के चलने की जो आदत है, ऐसे झुक के चलते हैं ना. Why? Because their bones are not strong. Okay, so if you don't want this type of deficiency, so you should drink milk, cheese, butter and avoid exposure of naked body to sunlight. तो sunlight में बिना कपड़ों के नहीं रहना. So okay, and then you should eat what, milk, cheese and butter. Next is what, mineral deficiency diseases. Minerals भी हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है. अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं लैक ऑफ ब्लड. हमारी बॉडी में ब्लड कम होता है. स्किन, लिप्स, दे टर्न येलो. तो चिल्ड्रन दे यूजुअली हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दिस. ओके, उनके स्किन येलो हो जाती है. पीलिया की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है. सो द पर्सन कैन नॉट वर्क लॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक वो काम नहीं कर सकता है. एंड दिस कैन बी क्यूर्ड इफ यू ईट गुड फूड विच इज रिच इन आयरन एंड विटामिन बी. ओके, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनच, डेट्स, फ्रूट्स. अगर ड्राई फ्रूट्स खाना है, डेट्स, रेसिन्स, किशमिश खाना है, तो किशमिश से आपको आयरन मिलता है. नेक्स्ट इज व्हाट, कैल्शियम डेफिशिएंसी. कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपको वीक बोन्स होते हैं. सो व्हाट यू शुड ईट तिल, milk products which is rich in calcium. Banana में भी calcium होता है, so you should eat banana also, which is good source of calcium. Next is what, iodine. iodine से आपको याद आता है iodine नमक. It means अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर सॉल्ट नहीं है तो उससे क्या होता है, उससे भी आपको स्वेलिंग ऑन द थ्रोट, आपकी थ्रोट में स्वेलिंग होती है. सो एवरी पर्सन शुड ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट एवरी डे and they will not suffer with a goiter. So iodine deficiency का मतलब क्या होता है, गर्दन में swelling. So you should eat iodized salt every day. Okay children, so now did you understood कि हर खाने की चीज, वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, फ्रूट्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. If you not eat one or the other problem, you will feel in your body. So every day you should eat healthy food diet. Okay, and with this we have completed our first lesson, that is lesson number 7 from term 2. Your work is to read the lesson and watch my video. I'll prepare the notes and I'll give you as soon as possible. Okay children, till that, goodbye and take care.